Good afternoon to one and all here. I, Tarun Mishra, DYHOD, EC Department, welcome you on the behalf of Purnima College of Engineering, Jaipur. I take this opportunity to welcome you today webinar on metal and polymer 3D printer and introduction organized by Department of Engineering, Purnima College of Engineering, Jaipur. It is a great privilege for us to welcome one of our alumni, Mr. Ashish Vashni, Electrical Manager at Latashi 3D Creations, Jaipur, as today's speaker. He completed his BTech in 2014 from Electronics and Communication Engineering branch. He also completed his Masters of Science in Electrical Energetics System Engineers from Munich University, Germany. He is also he is runner-up in ISRO competition to make a fully functional rover in NIT Chennai in 2018. He also successfully completed 1 year of internship program in NASA 2014-16. He has a 3 years work experience in HP on metal 3D printer during master's degree. Right now, he is running his own 3D printer manufacturing company, Latashi 3D Creations in Jaipur, and successfully installed 10 plus 3D printers in Pan India. In today's webinar, Mr. Ashish Vashni covered introduction about his experience of metal and polymer 3D printers and its introduction about it. So all participants are requested to raise the query through the chat box only. Mr. Ashish will answer after the presentation. Now I request Dr. Mahesh Bundile sir, Director of Purnima College of Engineering, for opening remark and welcome address. Over to you, sir. Yeah. So, guest of the morning, Mr. Ashish Varsne, and who is owner of 3D printing manufacturing, 3D printer manufacturing. Just a minute. So some disturbances there. Yeah. Yeah. And Dr. Garima Mathur, Mr. Tarun, and dear participants, it's really a critical time we are going through. However, now we are trying to cope up with the situation, COVID-19. Although there is a large increase in the number of cases every day, however, we are confident that now India will be able to provide solution kind of even vaccine. And unless there is a vaccine, we will not be able to cure it fully. Under such situation also, we have to survive, we have to do everything, and we have to go ahead. That's why everything is now being unlocked, and these are now unlocked seasons going on. The government is opening different zones, different opportunities, industries, and different things. So I suppose uh, under such situation also, we are organizing webinars and different kinds of workshops, FDPs, and we already conducted online examinations, sessions, and students are promoted to higher classes. The classes have already started. I must appreciate the students for remaining keen in learning and appearing in the examinations and participating in different activities, webinars from March, or rather April, we began with, or March end, we began with the activities. Students are continuously participating. Somehow, maybe initially they were not having the internet connectivity, even then they could. Now today's topic of webinar is metal and polymer 3D printer. I suppose we have already purchased 3D printer and it is being installed by Mr. Ashish only in the institute. So he will be able to focus on how this technology works, how this polymer and metal printer works, how the students can use this facility for doing their projects, for designing different objects related to maybe electronics engineering, maybe related to mechanical engineering, because it is not a branch dependent
uh, item. It is the 3D printer is being used in all the disciplines. So I thank Mr. Ashish also for accepting our invitation to deliver webinar. Thank you, everybody. Thank you. Now over to Tarun again, or I think Ashish. Yeah. Yes, sir. We start our webinar. So Ashish, so over to you. You can start now. Thank you, sir, for inviting me for this because as that you are already purchased a 3D printer and upcoming days I just install the 3D printer also. So it's good for me and good for the Purnima College. And thanks to all for supporting me as in 2014 as we means actually my journey started in 2010, but that was actually one person is helped me out on that time. That is Mr. Sharma, I think. So after that, I'll just complete my masters and everything and doing taking experience in 3D printing. Right now, I am doing work in 3D printing, just like designing, making models, everything. But sir, right now I am working on 3D printing technology in metal and as well as polymer. Firstly, I just introduced the polymer version. After that, I just explain the metal how the metal works in a real time. बेसिकली सर हम 3D प्रिंटिंग के बारे में ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 3D प्रिंटिंग से क्या क्या कर सकते हैं. हम बेसिकली 3D प्रिंटिंग बेसिकली है क्या. 3D प्रिंटिंग जस्ट आप जो सोचते हैं, जो आप एक इमेजिन करते हैं, वो हम रियल वर्ल्ड में जस्ट रेप्लिका बना देते हैं by the help of CAD designing, by the help of slicing and by the help of 3D printing. But in 3D printing के अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो है सर रॉ मटेरियल. बेसिकली आजकल इन टुडेज वर्ल्ड we are using two types of raw materials. First is polymer, second is metal. But polymer की जो ग्रेड्स हैं वो बेसिकली बहुत तरह की हैं और मेटल की जो ग्रेड्स हैं वो बहुत तरह की हैं. बट जो हम बेसिकली हम जो 3D प्रिंटिंग की जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हम एज ए फिलामेंट की तरह हम यूज करते, मतलब एज ए रॉ मटेरियल फिलामेंट यूज करते हैं. बट फिलामेंट भी हमारे पैलेट से बनते हैं सर बेसिकली. सो बेसिकली मैं आपको 3D प्रिंटिंग में बेसिकली 3 स्टेजेस होती है. फर्स्ट इज डिजाइनिंग, सेकंड इज स्लाइसिंग, थर्ड इज ऑन प्रिंटिंग with G codes. G code is a mechanical thing, slicing is an electrical thing, and designing is also the first is a mechanical basically हम देखा जाए तो हम CAD डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. बट बेसिकली माय कंपनी यूजिंग Onshape, but because Onshape is very friendly and for education purpose is free, so that's why I am using the Onshape on as a industrial purpose also and an education purpose also. And after that I just wait a second, I just show you what is Onshape. Tarun sir, basically this is the Onshape software. This is the free for education purpose. You can design anything. I just designed right now I am designing one simple keychain. Actually in 3D printing का first step to learn how to design anything. अगर आप कुछ भी सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं और उसको आप डिजाइन कर पाए तो हम उसको 3D प्रिंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इस डिजाइनिंग करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. इस तरीके से हम बेसिकली एक कीचेन में आपको अभी विद इन 5 मिनट्स में एक डिजाइन करके दिखाता हूँ. इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं एक कीचेन या कुछ भी जो आप चाहें.
In this way, we are designing just one simple keychain for bits. In this way, uh, in this way, we can design the simple keychain on this software. You can design plenty of things in this software, just like make the simple design, bomb and gear. Wait, like I just show you one design. In this way, you can design plenty of things. Then the second step is that just export this design into .stl file. Then we can make हमने यहाँ पर एक कीचेन बना लिया है. उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है. We can use this software for slicing basically. In this way, this is a पहले ही मैंने एक सॉफ्टवेयर एक HTML बना लिया था. After that we just slice it. In this way we can make the imagery thing into the real world. Screen is there. Share this. Open. Stop sharing. In this way we can make the imagery thing into the real world. Basically इस समय आजकल इस समय करीब 15 तरह के फिलामेंट्स आ रहे हैं. I can share one presentation to you. Actually this type of filaments are in the markets. Wait a second. These are the plastics in industries. We are using this PLA, Onyx, ABS, fiberglass, PETG, HIPS, nylon. Wood is also is converted to filament. PP and marble. Marble is also used in 3D printing. PC and TPU. TPU is a rubber, just like rubber. Kevlar and PVA. These 40 filaments are made by plastic resins. But right now we also make prints as a metal. I can share this. These are the filaments. Stainless steel 316F filament. These filaments are 80% metal and density is 3.5. And you can also print a high carbon iron metal filament. Is carbon fiber 80% metal and 20% is polymer. Bronze filament is also available. Aluminum filament is also available, but in aluminum filament, 65% is only aluminum and rest of is polymer. And copper is 90% metal and other is 10% is polymer. But in metal there is a process. First we design the CAD design in Onshape.
After that we just print it up, and after that we just center that part. एक्चुअली हम सेंटर क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हमें बेसिकली हमें चाहिए मेटल, नॉट एज ए पॉलीमर. So we, after this printing metal, we just heat up into 1500 degrees Celsius in this center. After that, after the sintering process, you just have that part, metal part. I can show you how it is being processed. Now this is the 1 meter printer. We can make up to 1 meter print from this printer. I just play this thing. Wait a second. Working as a light 3D printing. Yes. This is head, this is bed, and this is the raw material we are using is this one. जैसे कि हमने स्लाइसिंग करने के बाद हमने जी कोड स्कैनर डाला और यहाँ पर आपकी लाइव प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई. In this way we are using the 3D printing works. This is the filament. Basically this is the raw material. This is the raw material, and this is the head. See this. First layer is, यहाँ पर हमने फर्स्ट लेयर बनना स्टार्ट हो गई है. Basically, in this way, we are doing a 3D printing. But right now, we are working with 1 meter machine and up to 2 meter machine. And soon we just install one 200 by 200 by 200 build size in Purnima College. So just we can. अब हम एक बार go through होते हैं इस पे. I can show you how it works. अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि डिजाइनिंग करने में वेट सेकंड, अभी किसी ने मुझसे ये चीज क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर आप किस तरीके से आप डिजाइनिंग करते हैं, मतलब कितना टाइम लगता है आपको डिजाइनिंग करने में. यहाँ पर डिजाइनिंग करने की स्पीड और ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस पे बेसिकली मैटर करती हैं. आपको बनाना क्या है. बेसिकली ये जो मैंने किचन अभी रेडी किया था, ये विद इन मैंने 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के अंदर बना दिया है. बेसिकली मैं दिखाता हूँ ये चीज. अगर हमें की चेन की जगह सपोज करिए अगर कोई ग्लास या कुछ भी चीज बनानी होती तो हम किस तरीके से बनाते हैं उसको. एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ. अगर कोई एक कोई सा भी मॉडल है, हमें अगर की चेन की जगह कुछ और चीज बनानी होती, अभी मैं आपको एक ग्लास बना के दिखाता हूँ जिसमें मुझे हमें ये स्केचिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले चाहिए क्या, कौन सा प्लेन में हमें बनाना है. हम सबसे पहले ग्लास के लिए हमें एक सिंपल सा सर्किल चाहिए होता है जिस प्लेन में हमें बनाना होता है.
बेसिकली यूनिट हमें चेंज करनी है क्योंकि हम सारा काम के अंदर करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम 3D प्रिंटिंग की डिजाइनिंग करें तो हमें इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट हमें इसको एक्सट्रूड करना है। Then it look like a glass, but glass हमें अंदर से अभी इसको और एक्सट्रूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास अंदर से खाली होता है। This one. This one, glass is ready. After that you just हाँ, इसके अंदर एक चीज और है कि जब भी हम 3D प्रिंटिंग में करते हैं तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं। बेसिकली आप सबने देखा होगा जब हम कैड डिजाइनिंग करते हैं तो आपको ये सारे एक्सटेंशंस मिलते होंगे, डॉट सॉलिडवर्क्स का, IGES का, स्टेप का, ASI का, पैरासॉलिड का। आपको 3D प्रिंटिंग के लिए एक्चुअली .stl इज मस्ट। .stl आपके पास होना चाहिए। आपको .stl में एक्सपोर्ट करना है। जब आपके पास ये .stl में एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्चुअली 3D प्रिंटिंग जो हमारी मशीन होती है वो एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है। स्लाइसिंग है क्या? बेसिकली स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हमारे जो मॉडल को हम लेयर बाय लेयर हमें इसको कटिंग करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमने अभी बनाया है मॉडल, उसको हम इसके अंदर स्लाइसिंग करने इस मॉडल के अंदर डालेंगे लाइक दिस। लाइक दिस। आफ्टर दैट हम इसके डायमेंशंस को हम खुद यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से हम खुद चेंज भी कर सकते हैं जितना 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 बड़ा हमें चाहिए एक्स वाई जेड के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आफ्टर हमें क्या करना है, इसको स्लाइस करना है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली इसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं। ये जो आपके सामने ब्लू कलर में जो बन रहा है वो बेसिकली फिलामेंट है। जो मैंने अभी आपको मशीन पे दिखाया था वो जो फिलामेंट, ये बेसिकली फिलामेंट है। और ये देखिए, मैं इन लेयर्स की बात कर रहा था। इस सॉफ्टवेयर से आपको इसके मूवमेंट की स्पीड, आपको इसका फीचर टाइप और आपको इसकी करंट प्रोसेसिंग पता चल जाती है कि आपका जो प्रिंट है आप तो वो कितना स्ट्रेंथ देगा, कहाँ पर कौन सी स्पीड होगी। जस्ट लाइक एनसिस, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसका इनफिल है। बेसिकली जो इनफिल जो है, इनफिल इसको स्ट्रेंथ देगा अपने एक छोटे से ग्लास को। दिस इज अ 3D प्रिंटेड पार्ट। दिस इज अ बॉम्ब गियर। ये हमने अभी 3D प्रिंटिंग से ही निकाला है। इसका हमने डिजाइन पहले प्रिपेयर किया था। इसका मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि हमने कैसे निकाला। वेट सेकंड, दिस हाउ डू यू स्लाइसिंग इज डिजाइन। वेट सेकंड, दिस क्वेश्चन हमने स्लाइसिंग जो है हमने डिजाइन नहीं की है। बेसिकली हमने स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर भी आई थिंक 5 से 6 तरह के आते हैं। जो मेरी कंपनी है जो हम यूज करते हैं वो है सिंप्लीफाई 3D। यू कैन सर्च एज ए सिंप्लीफाई 3D, जो पेड सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इसको आप खरीद के आप यूज कर सकते हैं। और मार्केट में ऐसे क्यूरा और स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर भी और हैं, जैसे पूसा का भी एक स्लाइसर है, उसको आप यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग बेसिकली हम यूज नहीं करते, हम बनाते ही स्लाइसर, हम आउटसोर्स करके हम स्लाइसिंग के अंदर। आप इसकी बात कर रहे होंगे, बेसिकली ये क्या है। बेसिकली मैं आपको इसमें दिखाता हूँ क्या चीज है।
ये जो चीज है यहाँ पर इनर वॉल और आउटर वॉल जो है इसकी जो डिस्टेंस है हमने यहाँ पर डिसाइड की थी। देखिए यहाँ पर 3 mm हमने यहाँ पर डिसाइड की थी, वही 3 mm आपको यहाँ पर दिखिए। स्लाइसिंग करने के बाद हमने क्या किया है, ये जो वॉल्स है इसकी ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये जो वॉल्स हैं, ये जो मैं इनफिल की बात कर रहा हूँ, वो ये इनफिल्स होते हैं और ये इसकी इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है। इनर वॉल और आउटर वॉल इसलिए जरूरी है क्योंकि 3D प्रिंटिंग के अंदर हमें इनर वॉल के बिना आप इनफिल नहीं कर सकते और आउटर वॉल के बिना आप इनफिल को सपोर्ट नहीं दे सकते। बेसिकली एक और क्वेश्चन अभी आया था, दूसरा था कि गैप बिटवीन, विल देयर बी ए गैप बिटवीन? नो। यहाँ पर जो ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग बेसिकली इस लाइनिंग में कोई गैप नहीं होगा। अगर कोई गैप होगा तो आपका ये जो ग्लास है वो कोलैप्स हो जाएगा वहीं, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में अगर लेयर, एक्चुअली 3D प्रिंटिंग का मतलब ही यही है, लेयर बाय लेयर। अगर आप लेयर बाय लेयर आपकी डिपोजिशन नहीं होगी सपोज, तो आप इसको 3D प्रिंटिंग आप कर नहीं सकते। और कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? वेट सेकंड, अभी कुछ है। फंक्शन इज बॉल इज ऑर्बिट फॉर सपोर्ट। ओके, फंक्शन ऑफ बॉल, एक्चुअली दिस इज नॉट बॉल, इट इज वॉल। वॉल का मतलब कि ये इसकी दीवार। एक्चुअली दीवार हमें ये जो दीवार है, देखिए, ये देखिए, ये जो इसकी जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल और इनर वॉल, अगर हम आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में सपोर्ट के बिना भी बनाए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम विदाउट सपोर्ट भी बनाते हैं, विदाउट इनफिल अगर हम बना देते हैं 0%, तो क्या होगा? एक्चुअली इसमें हमें क्या थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसने विदाउट सपोर्ट, विदाउट इनफिल भी इसने बना तो दिया, बट ये जो है ये सॉफ्टवेयर इतना समझता नहीं है, इसकी सॉफ्टवेयर की कोई IQ नहीं है। ये चीज जो हम कहते हैं वो ये करके दे देता है, बट रियल वर्ल्ड में 3D प्रिंटर आपको बिना इनफिल के आप बना नहीं सकते। बिना इनफिल के बनाएंगे तो ये जो वॉल्स है दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाएंगी। इसकी वजह से हम इसमें इनफिल देते हैं। अब इनफिल के बिना हम हमारे ग्लास को ना तो हम पकड़ सकते हैं, ना तो हम इसको स्टैंड, मतलब इसको हम क्या भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको बिना इनफिल के चलाएंगे तो क्या करेगी मशीन, इसको प्रिंट तो करती रहेगी बट वो लेयर बाय लेयर प्रिंट नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ पर लेयर बाय लेयर प्रिंट हो रहा है, वैसे लेयर बाय लेयर ये प्रिंट नहीं हो पाएगी। एंड द हाँ, ये मोहित जी ने पूछा है कि क्या हम सिंगल वॉल पे भी खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसकी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका लूप बंद कर दीजिए, सिंगल वॉल पे भी खड़ी हो जाएगी, बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ये देखिए, सॉफ्टवेयर आपको सिंगल वॉल पे भी खड़ा करके दे देगा, बट आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए 3D प्रिंट जो प्रिंटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, उसको ये नहीं पता कि उसके पास कोई IQ नहीं है, उसके पास तो कोई ब्रेन नहीं है। स्लाइसिंग क्या करेगा कि बस वो बना के दे देगा। अगर आप रियल वर्ल्ड में बनाओगे, लेयर बाय लेयर बना देगा, बट यहाँ पर जब आप उसको हैंडल करोगे उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हमें एक्चुअली स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि 3D प्रिंटिंग हम बेसिकली मोल्ड्स के अंदर यूज करते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ग्लास को, हमें ग्लास तो पता है कि हमें प्लास्टिक ABS में बनेगा, बट हमें क्या करना है कि इसका मोल्ड मेकिंग के लिए हमें इसको स्ट्रेंथ देनी होती है। मोल्ड मेकिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली मोल्ड मेकिंग के अंदर हमें यहाँ पर 2 जो पैरामीटर शेल है वो 2 रखना होगा, और इनफिल के लिए हमें 33% इनफिल देना होगा अगर हम PLA यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम फिलामेंट के हिसाब से इनफिल आउटर पैरामीटर्स हम को ध्यान रख के हम बेसिकली स्लाइसिंग करते हैं। देखिए, स्लाइसिंग का भी एक अलग से एक पैरामीटर होता है, जैसे कि लेयर कितनी रखनी है हमें, इनफिल कितना रखना है, सपोर्ट कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, बिकॉज हर एक फिलामेंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ओके, हमें उस फिलामेंट को निकलने से
के बाद हमें कितना जल्दी कूल करना है, यहाँ पर अपनी आप स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हो, आपके प्रिंटर की स्पीड कितनी है, कोई फिलामेंट कितनी स्पीड पे चलता है, वो भी हम यहाँ से हम जस्टिफाई करते हैं बेसिकली। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था इनसाइड ऑफ योर आउटर एंड इनर वॉल। मोहित जी मैं समझा नहीं इस पे आप क्या चीज मतलब कहना चाहते हैं? कैन यू प्लीज प्रिंट द ग्लास? यस श्योर, बट इट टेक अराउंड 2 hours 47 minutes। अगर मैं इस ग्लास को प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 hours 47। हाँ एक चीज और, जब हम यहाँ पर ये जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है जब हम ऑन द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, ये हमें बिल्डिंग टाइम बताता है, कितना फिलामेंट यूज होगा लेंथ में वो बताएगा, कितना प्लास्टिक यूज होगा इस ग्लास के अंदर वो बताएगा, और उसकी कॉस्ट बताएगा कि इस ग्लास को प्रिंट करने में कॉस्ट क्या है। तो इस तरीके से अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ग्लास को प्रिंट करना। अगर आप ग्लास को प्रिंट करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा और आपको मैकेनिकल लैब में आना होगा, जहाँ पर हम 3D प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। वहां पर आपको पूरे ग्लास को प्रिंट करते हुए खुद देख सकते हैं। हाँ हम और एनी अदर क्वेश्चन? नाउ हम बेसिकली वॉर्म एंड गियर पे हम बात कर रहे थे। अब मैं आपको वॉर्म एंड इस वाले गियर की आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये गियर हमने कैसे प्रिंट किया। देखिए मैं आपको बता, ये गियर एक्चुअली क्लाइंट का गियर है। ये एक्चुअली वॉर्म एंड गियर का एक पार्ट है। क्लाइंट हमें क्या करता है कि या फिर किसी को भी कोई प्रिंटिंग करवानी होती है, वो हमें इसका कैड मॉडल बना के देता है। कैड मॉडल बनाने के बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, जैसे कि एक वॉर्म हमें क्लाइंट ने दिया था, हमने उनका एसटी खोला। अब देखिए हमें क्लाइंट ने क्या किया, ये जो गियर है वो हमें एक 45 डिग्री के एंगल पे दिया। अब ये देखिए कि हम इस अगर गियर को बनाते हैं सपोज, तो यहाँ पर जो वॉइड है यहाँ पर सपोर्ट लगेगा। बेसिकली 3D प्रिंटिंग में हम ये चीज ध्यान रखते हैं, हमें बिना सपोर्ट के मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें बनानी होती है। क्योंकि अगर हमने सपोर्ट लगा दिया तो सपोर्ट हटाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एक जोमेटो यूज करना पड़ेगा, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी क्लिपर या कुछ भी। और अगर हमने सेम ही प्रिंट का सेम ही रॉ मटेरियल का अगर हमने सपोर्ट बना दिया तो इज वेरी हार्ड टू रिमूव। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसको इसी चीज को बनाते हैं तो हम क्या क्या चीजें करते हैं। देखिए जैसे हमने ये बनाया, अब देखिए यहाँ पर कितना सारा सपोर्ट लग रहा है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें ये सपोर्ट लगेगा ये नहीं लगेगा। एक चीज और, जब 3D प्रिंटिंग में अगर कोई चीज 45 डिग्री पर चैम्पर्ड होती है तब हमें विदाउट सपोर्ट भी हम प्रिंट बना सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले हमें इसका ओरिएंटेशन सेट करना होगा। ओके, इस टाइप से हमें इसका ओरिएंटेशन सेट करना है। ये हमें इसका रोटेशन से हमने इसका ओरिएंटेशन सेट किया। सेट करने के बाद हमने इसका सपोर्ट हटा दिया, बिकॉज हमें हमारे क्लाइंट ने बताया था ये 45 डिग्री पर चैम्पर्ड है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट किस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरीके से ये प्रिंट होगा। और जब इसका आउटपुट आया है वो ये है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस STL। अब इसमें भी एक चीज और होती है, इसमें एक चीज और है कि इसमें माइक्रोन्स भी बहुत ज्यादा फैक्टर करते हैं। माइक्रोन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो भी हम प्रिंट करते हैं उसका कोई ना कोई माइक्रोन्स होता है। माइक्रोन का मतलब है लेयर हाइट। जितनी भी हम लेयर हाइट कम करते जाएंगे और हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली इसका टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हमने पॉइंट 1 पे काम किया तो 2 hours, हाँ, बट इस पे ग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इसके टाइमिंग पर, कितनी देर में बिल्डअप होगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेयर हाइट इसकी मैंने यहाँ पर इसकी मान लो सपोज 0.3 कर दी। अब ये देखिएगा ये कितनी देर में बनता है, सिर्फ ओनली 1 hour में बन जाएगा। और जैसे मैं इसकी लेयर हाइट में और ज्यादा डिक्रीज करता हूँ, जैसे कि 0.5 करता हूँ, मीन 50 माइक्रोस पे करता हूँ, तो यही वॉर्म गियर कितने घंटे में बनेगा। देखिए 4 hours में बनेगा। इट मीन्स आपको ये डिसाइड करना होगा प्रिंटिंग के वक्त कि आपको कितना फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, कितना माइक्रोन्स पे चाहिए। अब इसको देखिए, इसमें आपको लेयर्स है ना बहुत ही ज्यादा कम माइन्यूट दिख रही होंगी,
और जैसे ही मैं इस पर 0.3 करूंगा, 0.3 मतलब 300 माइक्रोन्स पे करूंगा, तब देखिए आपको ये लाइंस आपको दिखेंगी प्रिंटिंग के वक्त। जितनी कम माइक्रोन्स पे बनाएंगे उतना टाइम लगेगा, और जितने ज़्यादा माइक्रोन्स पे बनाएंगे उतना जल्दी आपका काम होगा। बेसिकली हम जो रिकमेंड करते हैं वो 0.2 करते हैं, जिसमें आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि यूजर पे डिपेंड होता है कि वो कितने माइक्रोन्स पे बनाएगा। ओके, माइक्रोन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। ओके, हम बेसिकली 3D प्रिंटिंग के अंदर सबसे पहला फैक्टर तो हमारा माइक्रोन्स ही होता है। माइक्रोन्स में मेटल यूज टू प्रोड्यूस, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली माइक्रोन्स भी मेटेरियल्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की जो होती है माइक्रोन्स से जो मिनिमम माइक्रोन्स होता है वो 0.3 तक आप उसको प्रिंट कर सकते हो। एक्चुअली माइक्रोन्स में भी क्या होता है कि माइक्रोन्स आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोन्स किस तरीके से वर्क ऑन करता है। नोजल डाया पे डिपेंड करता है माइक्रोन। ये होता है बेसिकली माइक्रोन्स का जो, ये देखिए जैसे ये एक नोजल है, जैसे कि 0.2 mm की नोजल, 0.4, 0.6, 1 mm की नोजल। आप इस ये 0.2 जो लिखा हुआ है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस नोजल को अगर आप अपने प्रिंटर में यूज करते हो, प्रिंटर में आप लगा के आप प्रिंट करते हो, तो आप 0.2 से ज्यादा नहीं कर सकते, बट इससे कम आप कर सकते हो। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड 0.4 देते हैं बेसिकली। तो 0.4 का मतलब होता है कि आप 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0.05 तक आप प्रिंट कर सकते हो एक ही प्रिंटर से। तो इस तरीके से हम बेसिकली माइक्रोन्स पे वर्क करते हैं कि हमें कितने माइक्रोन्स का प्रिंट करना है, और बाय डिफॉल्ट हम 0.4 की नोजल देते हैं हर एक प्रिंटर के साथ। और बेसिकली अगर किसी को 0.4 की जगह कोई भी माइक्रोन्स पे बनाना है तो यू कैन परचेज वन ऑफ द, मतलब आपको मार्केट से ये 1.6, 0.4 इतने माइक्रोन्स की आपको खरीदनी होगी, या फिर आप अपने मैकेनिकल वर्कशॉप में जाके आप खुद भी ये नोजल बना सकते हैं। इसका जो कैट डिजाइनिंग है वो आपको हमारी कंपनी प्रोवाइड भी कर देती है, अगर आप खुद उसको बनाना चाहते हैं तो। Any other question regarding this microns or this? Is this only available in PC right now? हाँ, अभी ये PC में ही मतलब ये मशीन इंस्टॉल हो रही है फर्स्ट, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर वेडनेसडे। मतलब कि ऑन वेडनेसडे आई जस्ट इंस्टॉल दिस वन मशीन, आफ्टर इट यू कैन कम एंड प्रिंट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, अब मैं आपको इसी स्लाइसिंग के अंदर आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको हम बेसिकली, अभी तो मैंने आपको माइक्रोन्स की बात करी, माइक्रोन्स के साथ साथ अगर हम इसके इनफिल पे भी काम, अगर हम इनफिल भी करते हैं। अब क्या होता है इनफिल बेसिकली है क्या, स्ट्रेंथ के लिए है। बेसिकली इनफिल हम कम ज्यादा इसलिए करते हैं कि हमें अल्टीमेटली यूज कहाँ करना है, आपका रियल टाइमिंग में यूजेस का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मोल्ड मेकिंग में यूज करना है तो आपको 33 से 50% इनफिल रखना पड़ेगा, अगर सिर्फ आपको शो करना है। क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है इनफिल, अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इनफिल 2% इनफिल पे बनाता हूं तो इसका टाइम और वेट देखिए, टाइम देखिए 1 आवर 4 मिनट, बट इसका वेट हो गया 8 ग्राम। अगर मैं इसका इनफिल 33 कर देता हूँ तब इसका टाइम और वेट देखिए, टाइम इज 1 आवर 10 मिनट बट वेट इज 12 ग्राम। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम इसका यूज कहाँ ले रहे हैं। फाइन। और ऑल्सो इन पीआईटी अभी अवेलेबल नहीं होगा, अभी अवेलेबल नहीं है पीआईटी के अंदर, बट आप अगर आपके पास डिजाइन है, अगर आपके पास कैड मॉडल है, तो आप कहीं पर भी हो, आप पीसी में जाकर आप, या फिर आप मतलब आप सर से बात कर आप अपनी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। और प्रिंटिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। और अभी जो भी हम बाय डिफॉल्ट रॉ मटेरियल यूज देते हैं किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को या फिर कॉलेज में, दैट्स आर पीएलए। आप एक बार आप सबसे पहले प्रिंटिंग से पहले आप पीएलए पे थोड़ी सी स्टडी करके आइएगा।
तो मैं कह रहा था इनफिल, मैं आपको इनफिल की बात कर रहा था। तो इनफिल बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको रिजल्ट क्या चाहिए। ओके, अब आता है टेम्परेचर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेम्परेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएलए, आपको पता होना चाहिए प्रिंटिंग के वक्त कि पीएलए का बेसिक टेम्परेचर क्या होता है, 210। साथ में उसका बेड टेम्परेचर कितना होता है। अगर आपको बेड टेम्परेचर पता नहीं होगा तो आपका प्रिंट की जो फर्स्ट लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर आपकी बेड पे स्टिक नहीं होगी। अगर ये आपकी बेड पे स्टिक नहीं होगी तो आपका जो बाकी का जो प्रिंटिंग है वो आपकी प्रिंटिंग बन नहीं पाएगी। वेट सेकंड सर, दिस इज प्लास्टिक वेट इज वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वेट ऑफ, यस बिल्कुल। देखिए अब क्या होता है कि आप देखिए जो वेट होता है, वेट बेसिकली डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको इस पीएलए की डेंसिटी पता है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इसी वेट के आसपास होगा। फॉर एग्जांपल जो हम वेट की बात करते हैं वो 12.244 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका वेट लगभग होगा 11 से 13 के बीच में। तो हम बेसिकली आइडल लेते हैं इसमें। अगर आपने इसमें सपोर्ट लगा दिया तो सपोर्ट हटाने के बाद जो इसका वेट होगा यहाँ पर वो थोड़ा सा वेरी करेगा। देखिए हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर होता है वेट की डेंसिटी। इस वेट की डेंसिटी, मतलब आपको फिलामेंट की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये फिलामेंट किस डेंसिटी से है, तब आपका जो वेट होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा। हम और कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वेट? हाँ, अगर आप इसी में ही अगर आप इसकी बात करते हैं मेटल की, तो मेटल का वेट की जो डेंसिटी है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। अगर इसी गियर को अगर हम मेटल के अंदर बनाते हैं तो हो सकता है ये 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम का हो। तो मटेरियल का जो वेट है वो डेंसिटी पे डिपेंड है, फुल्ली डिपेंड है। इसके बाद मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये चीज दिखा दी। और एक चीज और कि आपका जो फिलामेंट डायमीटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फिलामेंट है आपको किस डायमीटर से आप यूज करें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फिलामेंट है मार्केट में, फिलामेंट ये जो डाया है, देखिए 3D प्रिंटिंग फिलामेंट आप सर्च करोगे तो 1.75 mm का भी आता है यहाँ पर, और ये आता है 2.8 mm का भी। मतलब इट मींस आपको 2.8 भी मिलेगा और 1.75। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन किस डायमीटर का फिलामेंट यूज करती है या फिर किस तरीके से बनाती है। चैट में ये अब मैं देखता हूँ यहाँ पर किसने ऑल शेयर द क्वेश्चन। व्हाट इज पीएलए? ओके, ये पीएलए क्या है मैं आपको बताऊं कि पीएलए बेसिकली एक प्लास्टिक है, एक रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम प्रिंटिंग करते हैं। पीएलए जस्ट लाइक ए पॉलीमर। एंड प्लीज शेयर द क्वेश्चन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? चैट में देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आपको बेसिकली अब मैं आपको फिर ये देखिए, अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जैसे कि हम ऑन शेप पे हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, हमारी कंपनी क्या क्या चीजें बनाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम 1-1 मीटर के बेसिस और किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप हम 3D प्रिंटिंग से क्या क्या चीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले एक वॉकिंग स्टिक मैंने बनाई थी। प्रिंटर से हम वॉकिंग स्टिक भी बना सकते हैं। यस क्लियरली, वेट अ सेकंड। ओके फाइन, आपको मटेरियल एग्जांपल देना है। वेट सेकंड, मैं आपको एक साइट बताता हूँ जहाँ पर आपको मटेरियल्स की नॉलेज भी मिलेगी और साथ ही साथ में आपको बहुत जितने तरह के मटेरियल्स आते हैं अभी राइट नाउ, अभी हमने जितने मटेरियल बना चुके हैं वर्ल्ड में वो आपको सारी लिस्ट अभी आपको मिल जाएगी।
एक्चुअली ये कंपनी है, ये एक जर्मनी कंपनी है जिसके साथ मैंने R&D की थी उस वक्त। यहाँ पर आपको प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपको हर एक एप्लीकेशन के अलग अलग तरीके के आपको मटेरियल्स मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ग्लास फाइबर चाहिए, आपको फ्लेम चाहिए, मेडिकल फिलामेंट्स भी आते हैं। आप बेसिकली हम मेडिकल में भी यूज जो करते हैं फिलामेंट मेडिकल ग्रेडेड, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि इस तरीके से आप 3D प्रिंटिंग से बोन भी आप सीधा रियल में बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फिलामेंट्स। बस आपके पास फिलामेंट होना चाहिए, 3D प्रिंटिंग आप मशीन आपको बना के दे देगी। The site is not visible. Okay, wait second. हमको साइट शेयर करता हूँ। This one. Now, this is the site 3DX Tech। ये एक जर्मन कंपनी है जो स्पेशली फिलामेंट्स ही बनाती है। यहाँ पर आपको हर तरह के फिलामेंट्स मिलेंगे। और अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर बेसिकली 4 या 5 फिलामेंट्स हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं, इंडिया में ही, फॉर PLA, ABS, HIPS एंड PETG। ये 4 तरह के फिलामेंट्स हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं। उनकी प्राइस लगभग 2000 से 3000 के अप्रॉक्स होती है। और ये हैं फिलामेंट्स जो अभी जो मैं कार्बन फाइबर की बात कर रहा था, वो ये एक फिलामेंट है जो कार्बन फाइबर की भी बहुत रेंज होती है कि आपको कार्बन फाइबर कहाँ पर यूज करना है। एरोस्पेस का कार्बन फाइबर अलग आता है, पीक के साथ अलग आता है, आपका PETG के साथ अलग आता है, आपका मतलब अलग अलग तरह के फिलामेंट्स है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपको कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज करना है। सर फुल फॉर्म ऑफ PLA जस्ट लाइक ए पॉलीमर है। give me the example of materials। ये देखिए, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर तरीके का फिलामेंट्स एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपको जो भी आपको एप्लीकेशन में आपको करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर हम 3D प्रिंटिंग यूज आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक JCRC का एक बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने वॉली करके बनाया था। तो उन्होंने मुझे पार्ट दिए थे ऐसे करके, और प्रिंटिंग हमने करके दी थी इस तरीके से। और ये सारा .stl में फॉर्मेट है इसका। और आजकल जो है सिविल इंजीनियरिंग में भी ये बहुत काम आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर हमने एक हाउस बनाया था होम करके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमने एक किसी का ग्राउंड फ्लोर बनाया था जिसके आर्किटेक्चर के जो मॉडल बनते हैं इस तरीके से हमने 3D प्रिंटिंग की थी। बस हमें इसका .stl और कैड फाइल चाहिए थी, और हमने फिर इसको इस तरीके से, ये हमारी कैड फाइल है, और इसको हमने फिर बस जस्ट एक एक्सपोर्ट किया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3D प्रिंटिंग में कैसे वर्क ऑन करेगा। हमने इसको एक्सपोर्ट किया .stl के अंदर ग्राउंड फ्लोर को। उसके बाद हमने इस पे स्लाइसिंग पे गए। हमने जो भी डाउनलोड किया था होम, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ग्राउंड फ्लोर, वेट सेकेंड, टुकड़ों में हुआ है बेसिकली है। वेट सेकेंड, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो है एक गुजराती क्लाइंट है हमारे, जिन्होंने हमें ये बेस बनाने को बोला था। जैसे जस्ट लाइक अब देखिए, ये जो आप क्लास की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये इंडस्ट्री में जो फाइबर इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर हम बेसिकली ये चीज प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिस। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बेसिस में हमने डिजाइन भी की थी।
ये एक ये एक मतलब पॉट है बेसिकली, और ये डिजाइन पॉट होगा यहाँ पर। मैं आपको इसका एक प्रिंटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। ये फेस है। एक्चुअली जो ऑन शेप है ये आपका टोटली डिपेंड करता है इंटरनेट पे। आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको ना तो कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन कोई लैपटॉप चाहिए, नथिंग, सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट में आप कहीं पर भी कैसे भी आप कहीं पर भी खोल के आप अपने एसटीएल को अपने डिजाइन को आप कर सकते हो। एक सेकेंड। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें जो कस्टमर होता है वो खुद बताता है कि उनको कहाँ और कैसे यूज करना है इस मॉडल को। तो जैसे कि ये जो कस्टमर थे उन्होंने हमें बोला था कि हमें ये जो बेस बनाना है, लेकिन मैं आपको शेयर करता हूँ यदि स्क्रीन। जैसे कि जो भी बेस हमने डाउनलोड किया है वो ये है, देखिए ये है बेस इनका। कस्टमर ने हमें बोला था कि इनकी फाइबर कास्टिंग करनी है। तो हमें पता है कि फाइबर कास्टिंग के लिए इनफिल की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जो फाइबर कास्टिंग वालों को क्या करना पड़ता है कि इनको सिर्फ आउटर लाइनिंग से उनको काम होता है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हमें ये करना है और हमें इसमें टाइम भी बचाना है। तो 0.3 टॉप और बॉटम लेयर 3 की हमने इनफिल हमने क्या किया इसमें सिंपल 3% रखा और विदाउट सपोर्ट बनाना है, और स्पीड हमने रख दी इसकी 60, क्योंकि हमें जल्दी करना है बेसिकली। ये किया। अब हमें इसका मटेरियल टाइम सब कुछ पता चल गया यहाँ पर, इसकी कॉस्ट क्या होगी इसकी, और हमें ये चीज़ यहाँ पर पता चल गई। 5 घंटे में प्रिंट हो जाएगा और इसकी जो फिनिशिंग आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग में ये देखिए, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली है स्लाइसिंग की लाइनिंग। इसको हम लेयर बाय लेयर बनाते हैं 3D प्रिंटिंग में। सो किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग स्लाइसिंग, कैड मॉडल और 3D प्रिंटिंग से? क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया सिर्फ 5 मिनट और है मेरे पास, कंप्लीट द सेशन। या आई नो दैट, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स और हैं। और मैं आपको कुछ रियल के कुछ एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा। देखिए जो हमने भी पार्ट्स बनाए थे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स फॉर्म एंड गियर के, इस तरीके से हमने रियल एक एक बॉक्स का जो एक हमने रेप्लिका बनाया हुआ है। ये भी पूरा 3D प्रिंटिंग है, हमें सिर्फ कैड मॉडल दिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैड की डिज़ाइन किस तरीके से दी गई है। एक सेकेंड, मैं आपको इसी का ही एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक बॉक्स, इसको हमने रियल के अंदर ये इस तरीके से हमने इसको बना दिया। तो लाइव एप्लीकेशन 3D प्रिंटिंग की ये है बेसिकली। सर प्रोडक्ट साइज डिपेंड्स अपॉन द मशीन। यस यस, जो प्रोडक्ट साइज है बेसिकली आपके मशीन के बिल्ड वॉल्यूम पे। जैसे कि अभी जो हम मशीन की बात करेंगे, अगर आपको अगर आपके कॉलेज में जो अभी प्रोवाइड होगी वो होगी 200 mm। अगर आपको इससे बड़ा बिल्ड साइज अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको कॉन्टैक्ट मेरी कंपनी से करना होगा जो 1 मीटर तक के प्रिंट बनाती है। मगर एक्चुअली क्या होता है कि जो इसके जो मशीन की कॉस्टिंग भी होती है वो उसके बिल्ड साइज पर ही मैटर करती है। The product side depends. What is this? I don't know. ठीक है।
और कोई क्वेश्चन रिलेटेड? Yes, Ashish, there is one question is why costing is so high? Hello? Hello? हाँ जी सर बताइए। So, there is one question by Mohit, why the costing is so high? सर किसकी, मशीन की, फिलामेंट की, किस चीज की कॉस्टिंग है? I think he asked about the making of this, whatever the material we design, na, that costing is so high. So student is asking about why this नहीं सर, costing is एक्चुअली so high. कॉस्टिंग हाई नहीं है। एक्चुअली इसकी Okay. कॉस्टिंग आपको हाई लग रही है, बट इसका जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, मैं आपको सर एक एग्जांपल से समझाता हूँ कॉस्टिंग किस तरीके से इसकी हाई नहीं है। अब देखिए, अगर मुझे यही एक गियर बनाना होता रियल वर्ल्ड में, तो आपको बताइए कि इसकी एक 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 वॉर्म गियर की इसका कॉस्टिंग क्या क्या होगी, मुझे ये बताइए। हेलो Hello. हेलो Yes, yes. मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको इस गियर की कॉस्टिंग क्या होगी मार्केट वैल्यू, आप मुझे इसकी मेकिंग कितनी कॉस्ट होगी, कोई एग्जांपल से आप एक अंदाजा बताइए। It's around 20, 50, 20 to 50 नो in सर, between. इसकी कॉस्टिंग है 4.5 लाख। Okay. वो कैसे, वो मैं बताता हूँ सर आपको। तो ये सिंपल आपको एक गियर दिख रहा है, बट इसकी जो पीछे जो बना है, इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस करी है, वो आपने अभी तक देखी नहीं है। वो हमने इसका फर्स्ट मोल्ड बनाया, हमने इसकी डाई बनाई, और डाई सर कम से कम 2 से 3 लाख में एक डाई बनती है। डाई बनने के बाद हम इसके कम से कम 40 से 50,000 पीसेस निकालते हैं, तब जाके इसकी कॉस्टिंग 20 रुपए या 3 रुपए आती है। Okay, okay. अब क्या है, 3D प्रिंटिंग ने क्या किया है, 3D प्रिंटिंग से आप इसी चीज को रियल वर्ल्ड में आप कभी भी कैसे भी विद इन लो, मतलब इतने कम कॉस्ट में बना सकते हैं, और आप इसको आप कम से कम एक नहीं, आप इसको कितने भी बना सकते हैं आप। तो एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 3D प्रिंटिंग जस्ट नेग्लिजिबल। बस आपको सिर्फ क्या करना है, 1000-2000 रुपए का फिलामेंट लेना है, और जो 1 kg फिलामेंट आएगा उससे आप इसके पीसेस, अगर ये 10 ग्राम का है, सपोज ये 10 ग्राम का है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो आपको कितने कितने पीसेस मिल जाएंगे इसके। Yes. It's a lot of. अब आप इसको कंपेयर करिए कि कितना कॉस्ट रिड्यूस हो गया इसका। तो दैट Yes, yes. 3D प्रिंटिंग इज फ्रूटफुल। अब वही मैं एग्जांपल कहूँ कि इलेक्ट्रिकल में एक्चुअली सर ये चीज मेरे को तब समझ में आई जब मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो मैं मार्केट से बनवाता था, करीबन 10-15 हजार रुपए में देकर, और एक कंपोनेंट के लिए मैं इसको बनाता था। अब मैं 3D प्रिंटिंग से कि मुझे कैड डिजाइनिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, और आपके पास आपका कंपोनेंट 2 से 3 घंटे में आपके सामने। Yes, yes. तो अब आप देखिए कि कहाँ आप कॉस्टिंग की बात करो, कहाँ आपको ये विद इन मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम में मिल गया। तो इस तरीके Yes. से प्रिंटिंग से बहुत कॉस्ट रिड्यूस में आ गया। Okay, now we conclude our session webinar today. So I और सर proposed मैं a vote of. वेट Yes, 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 बोलना Ashish, चाहूंगा yes. सर, वेडनेसडे को हम पीसीए में मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मेरा ये होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एक बार वहां आए, मशीन को देखें और उसका डेमो देखें वहां पर। Yes, yes, Ashish, we will come surely. से कांटेक्ट करिए कब कैसे अरेंज करना है। Yes, sir, yes, sir, yes, Ashish. Okay, I will propose a vote of thanks because we have some limited time. So, a very good afternoon to all of you, distinguished dignitaries and participants. It's a privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I thank you, our today's speaker, our alumni, Mr. Ashish Vashni, Electrical Manager at Latashi 3D Creations, Jaipur, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion and light to all attendees, our students, with introduction and showing process how this 3D printing to be done. They show some different examples of gears, and I will thank you, Ashish. I also thank our director, Dr. Mahek Bundile sir, Vice Principal, Mr. Pankaj Demla sir, our HOD, Dr. Garima Mathur ma'am, for arranging this webinar. I am also thank our network administrator, Mr. Rajiv Shivraj Rajawat sir,
for his valuable support and for conducting this event. I thank all the participants who have turned up for this webinar, not only from our college but also from other colleges. Thank you so much for your participations. Thank you.